جو وارث، یہ سرخی آسماں پر ہے جو وارث، یہ سرخی آسماں پر ہے جو وارث، یہ لگتا ہے شہیدوں کا لہو، واہ 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 واہ، یہ لگتا ہے شہیدوں کا لہو ہے۔ کسی کو خواب میں دیکھا تھا ایک دن، ہماری آنکھ اب تک باوضو ہے، ہماری آنکھ اب تک باوضو ہے۔ بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وارث فارسی صاحب کی غزل سلوک اور معرفت کی راہ پر بھی آگے بڑھ رہی تھی، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ ابھی مجھے بتایا میرے بڑے عزیز میرے کرم فرما اسلم چشتی صاحب نے کہ 12 بجے تک ہمارے پاس وقت ہے اور اتنے ہی 1.5 گھنٹوں کے اندر ہمارے تمام شعراء و شاعرات جو بچے ہوئے ہیں ہمیں انہیں سننا ہے، تو میں بھی اپنی گفتگو کو تھوڑا سا سمیٹ کے تیزی سے سفر کرتا ہوں۔ شعراء کرام بھی تھوڑا سا وہ جو اضافی یہاں پہ پڑھنا چاہ رہے ہوں گے اسے روک کر اپنا جو ان کا منتخبہ خاص کلام ہے بس وہی اتنا سنائیں تاکہ کم وقت میں ہم سبھی لوگ اپنی اپنی حاضری درج کروائیں۔ ممتاز گرمانی نے کہا تھا کہ اپنی ہر بات زمانے سے چھپانی پڑی تھی، پھر بھی جس آنکھ میں دیکھا تو کہانی پڑی تھی، میں نے کچھ رنگ چرائے تھے کسی تتلی کے اور پھر عمر حفاظت میں بتانی پڑی تھی، میں نے کچھ رنگ چرائے تھے کسی تتلی کے اور پھر عمر حفاظت میں بتانی پڑی تھی۔ آئیے ایک ایسی شاعرہ کے حضور چلتے ہیں کہ جن کی زندگی کا بیشتر حصہ بچے اور بچیوں کی تعلیم میں ان کے درس و تدریس میں گزرا ہے، اور بہت سارے بچیوں اور بچوں نے ان کے زیر سایہ رہ کر زندگی کے پیچ دار وادیوں سے آسانی سے گزرنے کی ٹریننگ لی ہے۔ میں اس وقت ایک بہت بڑی شاعرہ، ادیبہ، مصنفہ اور مشاعروں کی بہت اچھی ناظم بھی ہیں وہ محترمہ ڈاکٹر وسیم راشد صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں آپ لوگ زوردار تالیوں سے ان کا استقبال فرمائیں، وہ مائک پر تشریف لا رہی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ کئی بار میری حاضری ہوئی ہے اور ہمیشہ بڑی محبت ملی ہے، بہت مبارکباد صاحب جشن کو بھی اور اسلم چشتی صاحب کو بھی۔ 26 جنوری یعنی یوم جمہوریہ کے موقع سے میری خواہش تھی کہ کچھ پڑھوں، لیکن چونکہ وقت کی کمی ہے تو سیدھا ایک مطلع اور چند اشعار۔ مطلع سماعت کیجیے گا، صدر محترم کی اجازت۔ دل کا قصہ نہ کبھی بیچ میں چھوڑا جائے، دل کا قصہ نہ کبھی بیچ میں چھوڑا جائے، یہ ورق ایسا نہیں ہے جسے موڑا جائے، دل کا قصہ نہ کبھی بیچ میں چھوڑا جائے، یہ ورق ایسا نہیں ہے جسے موڑا جائے، چاہے شیشہ ہو کھلونا ہو کہ دل ہو میرا، چاہے شیشہ ہو کھلونا ہو کہ دل ہو میرا، اس کی قسمت میں ہی لکھا ہے کہ توڑا جائے، چاہے شیشہ ہو کھلونا ہو کہ دل ہو میرا، اس کی قسمت میں ہی لکھا ہے کہ توڑا جائے۔ شعر سماعت کیجیے گا۔ اپنی دہلیز سے ہٹوا دیے پتھر اس نے، اپنی دہلیز سے ہٹوا دیے پتھر اس نے، میں پریشان ہوں کہ سر اب کہاں پھوڑا جائے، اپنی دہلیز سے ہٹوا دیے پتھر، اپنی دہلیز سے ہٹوا دیے پتھر اس نے، میں پریشان ہوں کہ سر اب کہاں پھوڑا جائے۔ وہ بھی پریشان تھا اسی لیے اس نے پتھر ہٹوائے۔ آپ زیادہ پریشان لگ رہے ہیں مجھ کو۔ تو ایک یہ شعر جو میں آپ لوگوں کے لیے پڑھ رہی ہوں، اپنے ساتھ لے جائیے۔ بعد میں جوڑیں گے ہم ٹوٹے ہوئے جاموں صبح، بعد میں جوڑیں گے ہم ٹوٹے ہوئے جاموں صبح، پہلے ٹوٹے ہوئے
हर रिश्ते को जोड़ा जाए। अरे क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। बाद में जोड़ेंगे हम टूटे हुए जामो सुबह, पहले टूटे हुए हर रिश्ते को जोड़ा जाए। और एक मतला और 2-3 शेर और मैं आप लोगों की नजर कर रही हूँ, आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ, मतला समात कीजिएगा। बहुत अच्छे। हम लोगों के घर पुराने हवेलियाँ, दरो दीवार, माँ बाप भी नहीं रहे, बहन भाई नहीं रहे, कभी जाते हैं वहाँ पर तो बड़ा मतलब तकलीफ होती है। तो वही एक ज़ख्म मैं आप लोगों के सामने पेश कर रही हूँ, समात कीजिएगा। अता करें। न वो कहानी न अब दास्तान बाकी है, न वो कहानी न अब दास्तान बाकी है, बस एक जख्म का दिल पर निशान बाकी है। क्या बात है, वाह। न वो कहानी न अब दास्तान बाकी है, बस एक जख्म का दिल पर निशान बाकी है। तुम्हारी याद का साया था जब तलक सर पर, माँ बाप बहन भाई सब, तुम्हारी याद का साया था जब तलक सर पर, हमें भी लगता रहा आसमान बाकी है। बात है, तुम्हारी याद का साया था जब तलक सर पर, हमें भी लगता रहा आसमान बाकी है। न कोई आस न उम्मीद तेरे आने की। खड़े हैं दरो दीवार को देख रहे हैं, ये सब इमेजिन करने की चीजें हैं। न कोई आस न उम्मीद तेरे आने की, ना जाने किस लिए आंखों में जान बाकी है। बहुत अच्छा है, वाह। न कोई आस न उम्मीद तेरे आने की, ना जाने किस लिए आंखों में जान बाकी है। इसीलिए चले आते हैं उसके कूचे में, इसीलिए चले आते हैं उसके कूचे, इसीलिए चले आते हैं उसके कूचे में। वो चाहता है हमें ये गुमान बाकी है। क्या अच्छा है, वाह वाह। चले आते हैं उसके कूचे में, बहुत अच्छा। वो चाहता है हमें ये गुमान बाकी है। मक्ता समात कीजिएगा। हमें नसीब था जैसा वसीम बचपन में, हमें नसीब था जैसा वसीम बचपन में, न वैसा घर है न वो खानदान बाकी है। हमें नसीब था जैसा वसीम बचपन में, न वैसा घर है न वो खानदान बाकी है। हमें नसीब था। मेरे घर से कुछ लोग आए हुए, तो मैं चाह रही हूँ कि उनकी फरमाइश पर एक मतलब चंद अशार, और वो मैं अपना शेर आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ कि जिसने मेरी पहचान बनाई है अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में। ज़रा मतलब समात कीजिएगा। 2-3 शेर इसके मैं सुनाकर आप लोगों की जहमत तमाम। मुझे ये जहमत तमाम कहना बहुत ही ख़राब लगता है। अगर शायरी जहमत है तो ना हम कह सकते हैं ना आप सुन सकते हैं, तो इसलिए हाँ ये काम मेरा ख़त्म हो जाएगा। घर से दुश्मन के खबर जब भी बुरी मिलती है, घर से दुश्मन के खबर जब भी बुरी मिलती है, दिल बड़ा लाखों लोगों को खुशी मिलती है। इंसान की नफ्सियात में क्या करें, लेकिन देखिए क्या होता है। लहलहाती है मोहब्बत की सुनहरी फसलें, लहलहाती है मोहब्बत की सुनहरी फसलें, दिल की धरती को अगर थोड़ी नमी मिलती है। लहलहाती है मोहब्बत की सुनहरी फसलें, दिल की धरती को अगर थोड़ी नमी मिलती है। उंगलियां खुद से तेरा नाम लिखा करती हैं, उंगलियां खुद से समात कीजिएगा। उंगलियां खुद से तेरा नाम लिखा करती हैं, जिस जगह पर भी उन्हें गर्द जमी मिलती है। उंगलियां खुद से तेरा उंगलियां खुद से तेरा नाम लिखा करती। बहुत अच्छे शेर है, क्या कहने, वाह वाह। बहुत मोहब्बत, बहुत तेरा नाम लिखा, आपकी तारीफ, आप तो मेरे लिए तालियां होनी चाहिए थी। गजल का बहुत खूबसूरत शेर आप सबको। उंगलियां खुद से तेरा नाम लिखा। देखिए मोहतरमा शाइस्ता सना साहिबा भी अपने आप को नहीं रोक सकी मोहब्बतों से नवाजने के लिए। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने। उंगलियां खुद से तेरा नाम लिखा करती हैं, जिस जगह पर भी उन्हें गर्द
जमी मिलती है। वाह वाह। और एक सर मेरे मिजाज का शेर जी, जी, कि खाकसारी के लिए शाहों के घर मत जाओ, खाकसारी के लिए शाहों के घर मत जाओ, ये वो दौलत है जो रस्ते में पड़ी मिलती है। खाकसारी के लिए शाहों के घर मत जाओ, ये वो दौलत है जो रस्ते में पड़ी मिलती है। और मेरा मक्ता ये आप सभी खवातीन की, सभी बहनों की और बच्चियों की नज़्म है। इस मक्ते ने पूरी दुनिया में मेरी पहचान बनाई है। खाकसारी के लिए शाहों उंगलियां खुद से तेरा नाम लिखा करती हैं, जिस जगह पर भी उन्हें गर्द जमी मिलती है। और मक्ता समात कीजिएगा, मायके जाऊं तो अब तक मेरी चौखट पे वसीम, शेर देखिए सर, मायके जाऊं तो अब तक मेरी चौखट पे वसीम, मेरी ही शक्ल की एक लड़की खड़ी मिलती है। मायके जाऊं तो अब तक मेरी चौखट पे वसीम, मेरी शक्ल की एक लड़की खड़ी मिलती है। मायके जाऊं तो अब तक मैं बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये थी मोहतरमा डॉक्टर वसीम राशिद साहिबा, जिन्होंने ज़िंदगी के मुख्तलिफ खूबसूरत अनकहे मौज़ूआत को अपनी शायरी का हिस्सा बनाया। मैं उन्हें बेपनाह मुबारकबाद पेश करता हूँ, चूँकि ये मुशायरे का मकसद ये रहा है कि इसे मंसूब किया गया आपकी अपनी मिट्टी के एक महज़्ज़ब तालीमी अदबी शख्सियत के नाम से हाली जनाब मुनव्वर पीर भाई साहब का जश्न से मौसूम किया गया। और इसकी सदारत फरमा रहे हैं आपकी अपनी इस ज़मीन के बहुत ही मारूफ आर्किटेक्चर आली जनाब मोहतरम ज़ुबैर रशीद शेख साहब। और इनकी सदारत की बरकतें हैं। मुशायरा अपनी पूरी कामयाबी के साथ अपनी बुलंदियों की तरफ चल रहा है। मुशायरों का एक मकसद होता है, जिसे डॉक्टर साहिबा ने 2 मिसरों में बयान किया कि बाद में जोड़ेंगे हम टूटे हुए जाम सुबह, पहले टूटे हुए हर रिश्ते को जोड़ा जाए। ये हमारे मुशायरों का मकसद होता है। इस मंच से हम कोई ना कोई ऐसा मैसेज या पैगाम देना चाहते हैं जो आप लोगों का यहाँ पर आना सफल हो जाए। मैं चाहता ही नहीं मेरी झूठी शान रहे, तेरे मकान से ऊंचा मेरा मकान रहे, लड़ूंगा तुझसे मगर गालियां नहीं दूंगा, कोई तो फर्क तेरे मेरे दरमियान रहे। ये मुशायरों का एक मकसद होता है, एक मैसेज, एक पैगाम, जहाँ से यह हमारी तहजीबी दर्सगाह है मुशायरे का मंच। मैं आइए अब उस शायर को आपके दरमियान पेश करता हूँ जिसकी करख्तगी से पुर आवाज़ में आपको हमारे माशरे के बहुत सारे ऐसे मनाजिर आपके सामने आ जाएंगे कि जिनसे आप और हम जूझ रहे हैं, लेकिन उनसे निकलने का हमारे पास रास्ता नहीं है। या हम बेहिस हो चुके हैं या हम बेबस हो चुके हैं, लेकिन वही शायद उन मनाजिर को ताज़ा भी करेगा और उनसे बाहर निकलने का खूबसूरत रास्ता भी सुझाएगा। मुतरन्निम लबो लहजे के बहुत बाकमाल शायर आली जनाब शरफ नान पारवी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, आपकी तालियां कमज़ोर नहीं होनी चाहिए इनका इस्तकबाल में। मोहतरम शरफ नान पारवी आपकी समातों के खबर। जज़ाकल्लाह इरशाद अलीम साहब की खूबसूरत निज़ामत। साहिब सदर मुअज़्ज़ज़ शोरे किराम, इस हाल में तशरीफ़ फरमा तमाम खूबसूरत अदब नवाज सुखन फ़हम बाज़ सामीन किराम, शुक्रगुज़ार हूँ असलम चिश्ती साहब के तमाम रफ़क़ा का, इनकी मोहब्बतों से के हवाले से आप लोगों से इस मुलाकात का इस शरफ़ को जो शरफ़ हासिल हुआ। सदर अली वक़ार से इजाज़त चाहता हूँ। शोरे किराम की ख़ास शब्दों का तालीम है। एक मतले से आगाज़ करता हूँ, थोड़ा सा अपना बेदारी का सबूत आप लोग पेश कीजिएगा जहाँ अच्छा लगे आपको। मतलब पेश करता हूँ कि सोने आंगन में प्यासे शजर छोड़ कर, सोने आंगन में प्यासे शजर छोड़ कर, अब्र बरसा मगर मेरा घर छोड़ कर। लीजिए गजल का मजा लीजिए, क्या बात है शरफ साहब, वाह वाह वाह। जज़ाकल्लाह, बेदार हो गए। सुने आंगन पे सुने आंगन में प्यासे शजर छोड़ कर, अब्र बरसा मगर
میرا گھر چھوڑ کر اب غزل کا شعر پیار کے موسم آئے گزر بھی گئے پیار کے موسم آئے گزر بھی پیار کے موسم آئے گزر بھی گئے مسئلے الجھنے درد سر چھوڑ کے پیار کے بہت اچھے بابا گزر بھی گئے پیار کے شرف صاحب زندہ باد بابا جزاک اللہ جزاک اللہ داستان اس نے سب کی سنی غور سے ایک ایک شخص کی شرکت چاہتا ہوں سب کی سنی غور سے داستان اس نے سب کی سنی غور سے ایک میرا